in the beginning. May I ask one of you to please pray? Can one of us lead in prayer? Pastor, I'll lead in prayer. Yes, please do that. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord. Thank you for this evening time and for helping us all gather in this fellowship. Even though places are closed, thank you for helping us to join in your name. Lord, be with the rest of the time, and you lead us and you teach us and you guide us, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Shall we, the time, now is the time to read from the Word of God, Psalm 1. The reading is taken from the book of Psalm 1, verses 1 to 6. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. But those who delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prosper. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the ways of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. This is the word of the God. Thanks be to God. Thanks be to God. The book of Psalms, one of the most beautiful books. The Psalm compiled by different authors, different writers, हमको याद दिलाते हैं खुदावन की मेहरबानियों के लिए. हमको याद दिलाते हैं कि हमारी हर तकलीफ में खुदा हमारे साथ है. ज्यादातर जो भजन हैं, they have been written by King David. And David, we all know what kind of a life he used to live. He was very much an ordinary, very much a normal human being, just like one of us. He was, of course, a sinner. मगर अपने गुनाहों में भी वो खुदा से मोहब्बत करता है, खुदा से प्यार करता है. बहुत से भजन जो हैं वो हमें सिखाते हैं. They give us some teachings. Many psalms, they exhort us to do the will of God. Many psalms, they help us to trust God in our times of need, in our despair. And one of the beauties of psalms is whether they begin in pain and sorrow, they always end with joy and thankfulness towards the Lord. और ये जो भजन है, ये एक उम्मीद है कि खुदा रास्तबाजों को, यानी कि राइचस लोगों को वो संभाल के बैठा है. और साथ ही साथ जो लोग गलत काम कर रहे हैं, those who deliberately sin, God's eyes are on them also. पहली चीज यहां पर हम देखते हैं, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. मत्ती की इंजील के अंदर हम देखते हैं धन्यवादियां हमें देखने को मिलती है. Beatitudes. Those beatitudes tell us who are truly blessed.
और यहां पर पुराने अहदनामे में ज़बूर के अंदर कहा जा रहा है कि मुबारक वो है जो बुरे की सलाह पर नहीं चलता। दिस वर्ड ब्लेसेड कैरीज ग्रेट डेप्थ एंड मीनिंग। ये ऐसा नहीं कि बड़ा दिन मुबारक हो या कोई और चीज, ब्लेसेड इवनिंग, समथिंग लाइक दैट। It is far beyond that. In Hebrew thought, the word blessed had a very great, very deep meaning. इसका मतलब है कि सर से पांव तक इंसान मुबारक है। जो वो सोच रहा है उसकी सोच मुबारक है, जो वो काम कर रहा है वो भी मुबारक है, जो कह रहा है वो भी मुबारक है। वो कुछ भी करेगा, कुछ भी कहेगा, कुछ भी सोचेगा, और उससे जो शख्स मिलेगा भी, वो शख्स भी मुबारक हो जाएगा। अब कौन है ऐसा शख्स जो मुबारक होगा? कहता है those who does not walk in the counsel of the wicked। भजन का लिखने वाला हमें पता नहीं है कि किसने इस भजन को लिखा है, और इस वजह से यह भजन और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरूरी ये नहीं है कि कौन लिख रहा है, जरूरी ये है कि क्या बात बोली जा रही है। और ये हर पीढ़ी के लिए, हर जाति, हर धर्म, हर समाज के लोगों के लिए ये अहमियत रखता है। हर समाज के लोगों के लिए ये अहमियत रखता है। Blessed is the one जो बुरे की, पौलुस रसूल कहता है बुरी संगत भले चरित्र को बिगाड़ देती है। तो मुबारक वो है जो बुरे की राह पर नहीं चलता, क्योंकि बुरा जब हमें सलाह देगा तो हमें गिराने की सोचेगा। अजीजों, जब हम परेशानी में होते हैं, कई बार हम किसी की भी सलाह मान लेते हैं। ये हमें जानने की जरूरत है कि हम सलाह मान रहे हैं तो किसकी मान रहे हैं। अय्यूब जब परेशानी में था, उसके पास बहुत सारे सलाहकार आ गए थे। 3 खास उसके दोस्त आ गए थे उसके पास, और उसको तरह तरह की सलाह दे रहे थे। उसको they made him feel really guilty to the extent that he moved into depression। वो क्या बोल रहे हैं कि तेरे अंदर कोई कमी थी, तूने कोई गलत काम करा जो खुदा का कहर तेरे ऊपर बरस गया। तो अजीजों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम अपनी कमियों में, हम अपनी मुसीबत के वक्त, अपनी परेशानियों में सलाह किसकी ले रहे हैं। हम कोई काम अगर करने जा रहे हैं तो सलाह किसकी ले रहे हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग, ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बहुत मायूस हो जाते हैं। वो कौन लोग हैं? उनमें से ज्यादातर वो लोग मिलते हैं जो दूसरे की सलाह मानकर गलत काम करने लग जाते हैं। दूसरे पर इस कदर भरोसा कर लेते हैं कि वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो जब आप गलत की सलाह पर चलेंगे, गलत कदम उठाएंगे, तो आप मुबारक कैसे हो सकते हैं? आप फ्रस्ट्रेट होंगे और आपको देखकर लोग भी फ्रस्ट्रेट होंगे। मगर जब आपके इर्द गिर्द भले लोग हैं और जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं, जब आपके इर्द गिर्द, जब आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो खुदा का खौफ रखते हैं, तब आपकी जिंदगी में खुदा का रूह होगा। आप मुबारक होंगे, आपके दिल में तसल्ली होगी। ना सिर्फ आप, बल्कि जो शख्स आपसे मिलेगा वो भी तसल्ली पाएगा, बरकतें पाएगा, क्योंकि आप उस पॉजिटिव माहौल में रहते हैं। कई बार आप देखते हैं कि चंदन की बिक्री होती है। कुछ लकड़ियां चंदन जैसी दिखती तो है, महकती भी है चंदन जैसी, मगर चंदन होती नहीं है। वो कैसी लकड़ियां होती हैं? वो आम पेड़ की लकड़ियां हैं जिनको चंदन की लकड़ियों के साथ रख दिया जाता है, और कुछ समय के बाद उनके अंदर चंदन की खुशबू आने लग जाती है, और लोग उसको चंदन कहकर बेचने लग जाते हैं। कहने का क्या मतलब है कि आप जैसी संगत में रहेंगे आप वैसे हो जाते हैं। जैसी संगत वैसी रंगत।
Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked. परिवारों में, समाज में, स्पाउसेस में अगर कोई फ्रिक्शन डालता है तो गलत तरह के लोग होते हैं जो हमको गलत सलाह देकर हमारे बीच परेशानियां खड़ी करते हैं। तो मुबारक है वो शख्स जो बुरे की सलाह पर नहीं चलता और स्टैंड इन द वेज ऑफ सिनर्स और सिट इन द सीट ऑफ मॉकर्स। ये सारी चीजें वक्त खराब करके खुदा यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में कहता है कि दिन ही दिन में काम कर लो, फॉर द नाइट इज अप्रोचिंग व्हेन नो वन विल बी अलाउड टू वर्क। समय कम है, हम गलत रास्ते पर चल के अपना वक्त ना बर्बाद करें। सिट इन द सीट ऑफ मॉकर्स। समय इस बात के लिए हमारे पास वक्त नहीं है कि हम हंसी ठिठोली करके मजाक करके अपना वक्त जाया करें। But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. कितनी खूबसूरत बात है। आपकी जो बाइबल है लिखी तो ये बहुत पुरानी गई है, नया अहदनामा भी आज से 2000 साल पहले लिख लिया गया था, और पुराना तो काफी पहले लिख लिया गया था, मगर उसके अंदर भी हर एक सवाल का जवाब है जो आज सन 2020 में हम जिस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो जब हमारे पास खुदा के कलाम के अंदर जवाब है तो हम दूसरे लोगों के पीछे जाकर क्यों अपना वक्त जाया करते हैं। His delight is in the law of the Lord. आपको कहीं फैसला लेना है तो आपको यह सोचना चाहिए कि कलाम में क्या लिखा है। आपको कोई फैसला लेना है तो आपको यह सोचना है कि मेरी जगह अगर खुदावंद यीशु मसीह होता तो वो किस तरह से फैसला लेता। हमारी खुशी खुदा के कलाम में होनी चाहिए, ना कि गलत लोगों की संगति में जो हमें गुमराह करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा, ऐसे दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए रोशनी, ये चीज होनी जरूरी है। Your word is the light unto my path. ये होना जरूरी है। कह रहा है कि जो खुदा की शरीयत पर ईमान रखता है और गलत लोगों की संगति के हिसाब से फैसले नहीं लेता, वो कैसा इंसान है। तीसरी आयत कहती है, he is like a tree planted by streams of water. बहती नाली के किनारे। आपने देखा होगा कई बार आप जाते हैं सड़क पर, कुछ पौधे होते हैं सूखे हुए होते हैं, कुछ पौधों के पत्ते मुरझा रहे होते हैं, सड़ गए होते हैं। कहीं पर वो जाली तो लगी होती है जिसके अंदर पेड़ लगना है, मगर पेड़ की जगह सूखी डंडी लगी होती है। वजह क्या है? पानी नहीं है, कोई नरिशमेंट नहीं, देयर इज नो नरिशमेंट। बट व्हेन यू विजिट अ रिवर साइड, you find a lot of greenery, healthy trees, lot of plants around it. क्यों? क्योंकि वो पेड़ नदी के किनारे लगाए जाते हैं। they draw their nourishment from the water. खुदावन का कलाम के साथ जो जुड़ा हुआ है अजीजो इंसान, वो उस पेड़ के मानिंद है जो नदी के किनारे लगाया जाता है। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है कि खुदा बाप और बेटे के सिंहासन में से एक नदी निकल रही है और उसके नदी के इर्द गिर्द पेड़ लगे हुए हैं। उस पेड़ के अंदर से पत्ते 12 महीने लगते हैं और तरह तरह के फल उसके अंदर अपने सीजन में लगते हैं। They become
a blessing to others. खुदा कलाम ऐसा है जीजो, जब उसमें जुड़े रहते हैं, जब हम खुदा में जुड़े रहते हैं, खुदावन यीशु मसीह आबे हयात का चश्मा है, he is the living water. When we draw nourishment from our Lord Jesus Christ, we become more and more like him. That was the real image into which we were created. You must have seen, कई बार हम लोग बचपन में भी ऐसा करते थे कि मनी प्लांट होता था, कोई पेड़ होता था, उसको हम रंगीन पानी के अंदर डालते थे, तो उसके पत्ते जो होते थे वो भी पानी के कलर के होने लग जाते थे। तो हम जहां से नरिशमेंट लेते हैं, जहां से खुराक लेते हैं, हम उसी के जैसे हो जाते हैं। अगर हम खुदावन यीशु मसीह से खुराक लेंगे, उसके कलाम से खुराक लेंगे, तो हमारी सूरत उसी खुदा के जैसी हो जाएगी जिसने हमको बनाया था। We will turn into the original image in which we were created. एक गीत भी गाते हैं, रंग लिया, मुझे अपने रंग में रंग लिया, यीशु ने अपने रंग में मुझको रंग लिया। ये होना जरूरी है। Unless we look like him, unless we act like him, we will not be allowed entry into the kingdom of God. और लिखा हुआ है कि whatever he does, he prospers. Now there is a contrast in this psalm between the two ways of life. Between a person who walks in the counsel of the wicked, and on the other hand, there is a person who lives his life according to the word of God. A person who takes decision according to the advice given by evil person, and a person who lives life according to the will of God, which is made known to him from his word. हर इंसान चाहता है कि वो जिंदगी में कामयाब हो। कामयाब होने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। You just cannot follow evil ways and expect to be successful in life. You have to walk in the ways of God, who grants success to his people. Victory belongs to the Lord. If you want to succeed in life, जरूरी नहीं है कि आप अगर खुदा की फुल टाइम मिनिस्ट्री में हैं, आप पासबान हैं, या आप इवेंजलिस्ट हैं, या मनाद हैं, तभी आपको खुदा के ऊपर निर्भर होना है। राजा दाऊद एक राजा था, सुलेमान भी एक राजा था, पौलुस मिशनरी होने के साथ साथ टेंट बनाने का काम करा करता था। ये सब अपने काम करते करते भी खुदा के जब ऊपर निर्भर रहे, खुदा ने इनको बहुत तायत से इस्तेमाल करा। नूह कोई मिशनरी नहीं था, एक आम आदमी था नूह, मगर उसी के जरिए इस कायनात को दोबारा बसाया गया। God may have a great plan for you, और वो प्लान आपको कोई नहीं बता सकता। वो योजना सिर्फ आपके और खुदा के बीच में होगी, एंड इट इज नेवर टू लेट। अब्राहम को 75 साल की उम्र में बुलाहट मिली थी। Sometimes we think we are too old to begin something new. अब्राहम 75 साल का हो गया था जब उसको खुदा ने बुलाया था, और उसके जरिए खुदा ने he created a community ordained to serve him till Christ returns. और यहां पर कह रहा है कि जो
धूर्त है, जो wicked है, he is like a chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor the sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. गुनाह क्या है? How does it come and how does it appear? It is a sugar-coated ball. अंदर से कड़वा है, बाहर से मीठा है, बहुत अट्रैक्ट करता है। वो फल जो आदम ने खाया था बहुत ही मीठा था, खूबसूरत था, देखने में खूबसूरत था, अंदर से जहर भरा हुआ था। सैमसन और दलाइला की कहानी हम जानते हैं। वो अपनी पत्नी की खूबसूरती पर ही मर गया, वो उसके अंदर के जहर को देख नहीं पाया। शैतान जब हमारे पास कुछ आजमाइश लेकर आता है तो उस आजमाइश को अच्छे से शुगर कोटिंग करता है, और जो आंखों की अभिलाषाओं पर भागता है वो ठोकर खाता है। बुरे की संगति पर ना चले। जब हमको कोई सलाह देता है, we have to understand why that person is counseling us. हमें काउंसलिंग की क्यों जरूरत है, जबकि खुदा के कलाम से बड़ा काउंसलर कोई नहीं है, खुदावन यीशु मसीह से बड़ा काउंसलर कोई नहीं है। Therefore, it is necessary that we depend on God. मुबारक है वो शख्स जो बुरे की राह पर नहीं चलता, ठट्टा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता, मगर खुदा की शरीयत पर, in the laws of God, he meditate day and night. For everything that man does, he will prosper in that. अगर हम चाहते हैं हम कामयाब हों, हम चाहते हैं कि खुदा हमसे बातचीत करे, हम चाहते हैं कि हमारे काम, हमारे हाथों के काम फलदायक हों, हमारी जिंदगियां फलदायक हों, तो भरोसा दुनिया पर और गलत काउंसलर्स पर नहीं रखना, गलत सलाहकारों पर नहीं रखना। हमारा भरोसा हमारे खुदा और उसके कलाम पर होना चाहिए। आइए हम दुआ करें। आए रहमत के बादशाह, गिवर ऑफ ऑल गुड थिंग्स एंड सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम, खुदावन आपकी पाक हुजूरी में आते हैं। We praise you, Lord. We lift your name high. We exalt you, for you are seated above heavens, exalted on the throne of highest honor. Heaven is your throne, O Lord, and earth is your footstool. How can we praise you enough, O Lord? You are beyond our perception. प्यारे खुदावंद, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस कलाम के लिए जो हमारी रूहों को तरोताजा करता है। आपके लोग जो आप पर भरोसा रखते हैं, आपके हिसाब से जिंदगी जीते हैं, वो उन पेड़ों के समान हैं जो नदी के किनारे लगाए जाते हैं। आए खुदावन, होने दे आपकी कौम आपसे जुड़ी रहे, जहां से वो पोषण पाए और आपके शक्ल में होती रहे, ताकि जब आजमाइशें आती हैं, जब इम्तिहान आते हैं, हम खुदा के समझ से सही फैसले ले सके। इनायत करे अपने बेटे हमारे दरमियान और फिदिया देने वाले खुदा यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। Who's doing the intercession? किसी को प्रार्थना के लिए बोला गया है? Shirley auntie has to pray. Yes. Let's pray. We thank you, Lord.
we come to thy feet. We bow our head to thank you. And Lord, we want to say that we know that you are the only Lord. Thank you for all your mercies. Thank you for all the blessings. Thank you that you have brought us together, Lord, that we may together bow our heads and thank you for your blessings and to praise your name. Thank you, Lord, for this word, Lord, Bible, which is so easily available to us. Master, thank you for each and every word which your servant has spoken to us. We want to follow it, Lord. हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु, तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारी अगुवाई कर और तू हमें वो शक्ति इनायत कर कि जब भी सेटन हमारे सामने आए हम उसको धिक्कार करके दूर करें और हम कह सकें कि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ में है। प्रभु, हम तेरे इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज हम खास तौर से प्रभु, we thank you, Lord, for Reverend Sandeep's life, which he has given to you, Lord, to serve you. We ask you, Lord, to bless his ministry, bless his small family, and Lord, keep them healthy and happy. Thank you, Lord, for Reverend Augustine also. Lord, when we are praying for your servants, we remember Reverend Colonel Messi also. We know, Lord, that you are with him. We ask you to have mercy and, Lord, be with him, talk to him. And Lord, whatever your wish is, may be fulfilled. We pray for our church members also, Lord. Dear members, those who are not well. We remember especially Mr. Wilson and Rajni and each and every other member of our church who is not well. तू तो प्रभु हर एक चीज को प्रोवाइड करने वाला है। तेरे भेद निराले हैं, तेरे सामर्थ भरे हाथ इतने खूबसूरत हैं कि उसके अलावा प्रभु किसी और चीज की जरूरत नहीं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हर एक को संभाले हुए है। तू उन हाथों को बरकत दे प्रभु, जो इस समय में इन बीमारों की सेवा करने में लगे हुए हैं। तो उन लोगों के साथ में रहे प्रभु, जो कोविड-19 के समय में प्रभु ड्यूरिंग दिस पीरियड अपनी जान को खतरे में डालकर तरह तरह की सेवा से, चाहे वो इलाज हो, चाहे उनके साथ में सफाई का हो, चाहे उन मरीजों की देखभाल का हो प्रभु, हर तरह से वो अपने जीवन को इस इतने नेक काम में लगाए हुए हैं। रहम करना प्रभु, रहम करना उन लोगों के ऊपर भी। तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारे चर्च के मेंबर्स के साथ में हो, हमारी कलीसिया के साथ में हो प्रभु। हम नहीं जानते, पर इतना जो कुछ थोड़ा पता है प्रभु कि इस कहर के समय कलीसिया के मेंबर्स तरह तरह की परेशानियों में पड़ चुके हैं।
उन सबको तेरे कदमों में लाते हैं। तू सबको जानता है, तू सबकी जरूरतों को जानता है। प्रभु उनको तू पूरा कर। और ऐसे समय में प्रभु तुझसे विनती है कि तू उन्हें विश्वास में कायम रखना, तू उन्हें अपनी प्रेजेंस को बनाए रखे, तब प्रभु एक्नॉलेज करने की उनको ताकत देना। और जो हम प्रभु कलीसिया के दूसरे मेंबर्स हैं, होने दे कि प्रार्थना के द्वारा और केवल एक्शंस के द्वारा ही प्रभु इस प्रेम को हम दर्शा सकते हैं। इसलिए तुझसे दुआ है कि तू हमको इस नेक काम में हमें तू जरूर लगाए रखना। इस शाम के लिए धन्यवाद करते हैं और तुझसे खास तौर से मिन्नत करते हैं प्रभु कि हमारे परिवारों में, हमारे चर्च में, हमारी कलीसिया में, हमारे क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस में प्रभु तो यूनिटी बनाए रखना, वह प्रेम बनाए रखना जो केवल तूने सिखाया है प्रभु। होने दे प्रभु, चाहे वो एक मसीह इंसान हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, हम तेरे प्रेम की जो दरिया बह रही है उसको और आगे बहने में प्रभु अपना सहयोग दे सके। हम उसमें हेल्प करें ताकि देखने वाले जाने कि हम तुझ जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी अपरंपार बरकतों के लिए। और एक बार फिर से प्रभु इस समय तो उन लोगों को और हमारे यूथ को प्रभु बरकत देना जो इतनी खूबसूरती से इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम सबको ये सुविधा, ये आराम देते हैं कि हम एक होकर प्रभु तेरे कदमों में आ सकें। तमाम बरकतों के लिए धन्यवाद करते हुए तुझसे मिन्नत करते हैं कि इस प्रार्थना को तू अपनी इच्छा के मुताबिक सुन और कबूल कर। आमीन। Let us pray. आइए हम दुआ करेंगे। खुदावन, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं कि आप रहमत के बादशाह हैं। शुक्रगुजार हैं कि आपकी हुजूरी हमारे साथ रही और हमारा ईमान कहता है कि खुदावन आपने हमारी दुआएं कबूली हैं, हमारी हम्दो तारीफ कबूली है आपने। और जो आपने अपने पाक कलाम के जरिए हमसे बातचीत करी है, वो कलाम हमारी जिंदगियों को बदलेगा। अब यहां से रुखसत होते आपके रूह से जुदा ना हो, आपके साए में रहें। लॉर्ड, बी आवर गाइड, आवर गॉड throughout the night. Bless our homes with your presence, and if it is your holy will, enable us to see the next morning which is beautiful in your sight and blessed for your people. To the glory of your matchless name we pray. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. and lead Do us not bring us not to time of trial, but but deliver us from evil. For for thine is the kingdom, the power and glory forever and ever. Amen. Amen. And now may the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit rest and abide with each one of us now and forever.
Amen. Amen. Thank you so much for joining in. God bless you all. So Thank- nice to see you face to face after a long time, and I think this is a very good way to keep in touch. We can encourage others also to join in, and this prayer meeting will continue every week at 6:30 p.m. on Wednesdays. So you can spread the word about it. और आधे घंटे में खत्म भी हो जाती है, ज्यादा लंबी भी नहीं है। आधे घंटे में सब कुछ मिल रहा है हमें, है ना? So I think others should also be encouraged to join in.